Guys, welcome back to my channel. Today we will discuss MSc 001 economic methods. Important question, Poisson distribution. So a second important discrete probability distribution is Poisson distribution, named after French mathematician S. Poisson, who published its derivation in 1837. The characteristics of Poisson distribution are as follows. तो characteristics क्या है Poisson distribution के? First है the occurrence of events is independent. ठीक है, इवेंट्स की अकरेंस इंडिपेंडेंट है. दैट इज द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन इंटरवल ऑफ टाइम or space has no effect on probability of second occurrence of event in the same or any other interval. Second, theoretically an infinite number of occurrence of event must be possible in the interval. Third, the probability of single occurrence of event in given interval is proportional to length of the interval. In any extremely small portion of interval, the probability of two or more occurrence of an event is negligible. Poisson distribution differs from binomial distribution in two aspects. So difference how Poisson differs from binomial. So rather than consisting of discrete trials, the distribution operates continuously over some given amount of time, distance, area, etc. Second, rather than producing a sequence of success and failure, the distribution produces success which occurs at random points in specified time, distance, area. The success are commonly referred as occurrences. जो पहला वाला पॉइंट है rather than, वो वाला रेफर करता है बायनॉमियल को, और फिर जब हम कॉमा के बाद जो लिखा हुआ है जैसे द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसेस, तो वो सब पॉइजन को बता रहा है और डिफरेंस बता रहा है बायनॉमियल और पॉइजन में. नेक्स्ट, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बी यूज. हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं टू अप्रॉक्सीमेट दी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब, जब एन की वैल्यू बहुत लार्ज हो, ठीक है, और पी की वैल्यू स्मॉल हो, एंड देयरफॉर इट इज़ रिगार्डेड एज लिमिट ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल वेर एक्स गोज फ्रॉम 0 1 एंड सो ऑन. सो देखो इधर एम क्या है, एम को हम पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. ये क्या बताता है, एवरेज नंबर, कितना नंबर, एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट. एक्स क्या है, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट, कितनी बार अकर हुआ है. ई क्या है, एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7183. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दो एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है. पहला है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड है समीशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मेनी एप्लीकेशंस इन बिजनेस and has been widely used in management science and operational research. The following are some of the examples which may be analyzed with the use of this distribution, that is Poisson distribution. First, the demand for a product, ठीक है, occurrence of an accident in a factory, the arrival pattern in a departmental store, the arrival of calls at a switchboard, etc. Now the mean and variance of Poisson distribution. The mean of Poisson distribution is given as u. Mu is equals to expected value of x, which is equal to summation x into fx, which is equal to summation x into e की पावर fx की वैल्यू हमने पता है e की पावर माइनस m into m की पावर x divided by x factorial, which can be written as 0 plus m into e की पावर माइनस m प्लस m स्क्वायर e की पावर माइनस m प्लस m क्यूब e की पावर माइनस m 2 factorial plus m4 e की पावर माइनस m into 3 factorial and so on. So we can take m e की पावर माइनस m common, will get 1 plus m square upon 2 factorial plus m cube upon 3 factorial and so on. So m into e की पावर माइनस m into e की पावर m, तो e की पावर माइनस m प्लस m माइनस m से m प्लस m कट जाएगा, तो क्या बचेगा, m बचेगा. तो मीन क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, एम क्यों बताती हूँ, देखो अगर लिखा हुआ है ये, एक मिनट रफली देखना, एम ई की पावर माइनस एम और ई की पावर एम, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा एम ई की पावर माइनस एम प्लस एम, तो क्या हो जाएगा एम इंटू ई की पावर ज़ीरो, ई की पावर ज़ीरो क्या होगा 1, तो एम इंटू 1, तो क्या हो जाएगा एम हो जाएगा. ठीक है मीन. Similarly, the variance of Poisson distribution is given as sigma square is equals to expected value of x square minus expected value of x का whole square, that is expected value of x square minus m square. ये expected value of x की वैल्यू हमने निकाली m है, तो m का whole square हो जाएगा. So expected value of x square minus m square, तो it is equal to summation x square into e की पावर minus m into mx divided by x factorial minus m square. But देखो समीशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल इज नथिंग इक्वल टू ई की पावर
minus m summation x into x minus 1 plus x divided by x factorial into mx, which is equals to m square e की power m summation, तो which is equal to m square e की power minus m into e की power m plus m square m e की power minus m into e की power m minus m square। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इधर e की पावर माइनस m है, e की पावर m है, पावर बार कट जाएगी, ये जगह e की पावर 0 विच इज़ 1, तो इधर से m स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली इधर m e की पावर माइनस m इंटू e की पावर m, फिर m हो जाएगा माइनस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कट जाएगा, m आ जाएगा, तो वेरिएंस भी इक्वल टू m है। इसे डेरिवेशन आती नहीं है, बट ये चीज़ याद रखना कि जो मीन और वेरिएंस है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, दोनों इक्वल टू m होता है। ठीक है, द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाय पैरामीटर m एंड इज पॉजिटिवली स्क्यूड। तो कम्प्लीटली डिफाइन किससे, पैरामीटर m से, और पॉजिटिवली स्क्यूड है। दिस पॉजिटिव स्क्यूनेस इज टिपिकल ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिकेटिंग विद एक्सट्रीमली स्मॉल probability there is a possibility that the distribution will produce an infinitely large number of occurrence। ठीक है, in segment of time space even though the mean rate of occurrence may quite small, as m increases the distribution shifts to right। जैसे जैसे m बढ़ता है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन राइट की तरफ शिफ्ट होती है। देखो ये इलस्ट्रेशंस देखो, जब m 0.3 तो ऐसा है, देखो जब 0.7 हो रहा है तो राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, फिर 2 हो रहा है तो और राइट की तरफ हो रही है, जैसे 4 हो गया तो और राइट, तो जैसे जैसे m बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूशन राइट की तरफ शिफ्ट होती है। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं एज एन अप्रॉक्सीमेट फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कब, जब n क्या बोलते हैं बहुत बड़ा होता है और p स्मॉल होता है। वही ये देखो, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अप्रॉक्सीमेट फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n इज लार्ज एंड p इज वेरी स्मॉल। तो जब n बहुत बड़ा होता है और p बहुत छोटा होता है तब हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं एज एन अप्रॉक्सीमेट फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और याद रखना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस दोनों m होता है, वेराज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है n इंटू पी, और वेरिएंस क्या होता है n इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, that was it guys, that was all for Poisson distribution. Thank you guys, do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.